In our body, there is blood-brain barrier which does not allow certain drugs to get absorbed. For certain infections such as CNS infection, we need local and rapid effect. For this, we introduce this drug of route administration. It is called intrathecal route of drug administration. The site of action remains the subalveolar space, which lies between arachnoid and pia mater. Well, what do you think, Kajal? What are the advantages of this route? As Yuvika said, these drugs can bypass blood-brain barrier and blood CSF barrier, and these drugs can act directly on meninges and CNS. With disadvantages, there come certain disadvantages. As it is a very painful procedure, expertise are needed and strict aseptic precautions are needed. So Yuvika, tell me the applications of intrathecal route. Well, the application lies that it is used in CNS infection where we use amphotericin B, also in spastic cerebral palsy where we use baclofen, and in spinal anesthesia. Now Yuvika, tell me about intra-articular route. Well, in intra-articular route, where there are certain diseases such as rheumatoid arthritis, where there is inflammation of joints, so we need higher concentration of drugs to be administered in that localized area. For this, we use this intra-articular route where we inject the drug into the joint space, and the disadvantages lies that it is a very painful procedure where we need a strict aseptic condition. Also, repeated injection to the joint space may further damage the joint. Well, what do you think about the intra-arterial route, Kajal? Intra-articular route is used as hydrocortisone or gold fluoride injection for treatment of rheumatoid arthritis. Now I would like to tell you guys about intra-arterial route. In intra-arterial route, the site of injection is lumen of desired artery. Greater concentration of drug can be delivered at the desired site of action. Disadvantages of this route are expert hand is needed, aseptic conditions are required. It is also a very painful procedure and high risk of systemic side effects and toxicity. Applications of this route is coronary angiography, cerebral angiography, and many anti-cancerous drugs are perfused through artery to treat malignancy involving lungs. Thank you. Good morning everyone. अरे सार्थक कहाँ गया? तुम भी इनहेलर यूज करते हो? मुझे भी अस्थमा है, मैं भी इनहेलर यूज करती हूँ। अच्छा, तुम इनहेलर यूज करती हो तो मुझे कंपोनेंट्स बताना। इसके ये सबसे पहला कंपोनेंट है ये कैनिस्टर, जिसके अंदर मेडिकेशन होता है। उसके बाद है माउथपीस या एक्चुएटर और मीटरिंग बॉल, जिसमें डोजेज का पता चलता है। अच्छा, तो इस कैनिस्टर में होता क्या है सार्थक? इस कैनिस्टर में मेनली मेडिकेशंस होती है, जिसमें एक तो ब्रोंकोडायलेटर्स होते हैं और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं। जो ब्रोंकोडायलेटर्स होते हैं वो बीटा-2 एगोनिस्ट होते हैं, जो कि ब्रोंकस को डायलेट करने का काम करते हैं, और जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं वो इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करते हैं। अब मुझे तुम इसको यूज करना बता सकती हो? सबसे पहले हमें इसे शेक करना होता है। उसके बाद इसका कैप खोल के हमें चेक करना होता है कि माउथपीस क्लीन है कि नहीं। उसके बाद इसे अपने माउथ में रख के और लिप्स को इसके अराउंड क्लोज करना है और कैनिस्टर को प्रेस करना है। साथ में हमें धीरे धीरे इनहेल करना है। पर एक चीज जरूर से ध्यान रखना, अगर तुम इनहेल करने के बाद में तुमको अपनी ब्रीथ कम से कम 10 सेकेंड्स के लिए रोकनी पड़ेगी, और जब एक्सहेल कर रही हो तब वो भी धीरे धीरे करना। पर अगर मुझे दूसरा पफ लेना हो तो उसके बीच में कम से कम 30 सेकंड से 1 मिनट का गैप देना। सार्थक, इसे बच्चों में भी आसानी से यूज कर सकते हैं? हाँ, इसको बच्चों में भी यूज कर सकते हैं, पर हमें साथ में एक स्पेसर काम में लेना होता है। ये स्पेसर एक्चुअली होता है एक अटैचमेंट है, जिसको हम है ना इसमें एमडीआई के आगे लगाते हैं। स्पेसर के बेनिफिट्स क्या होते हैं?
ये उन लोगों में काम में आता है जिनमें एक तो मोटर इनकोऑर्डिनेशन होता है, जैसे कि बच्चे जो कि अपने आप से इनहेल और एक्सहेल नहीं कर सकते एट द रिक्वायर्ड मोमेंट। सार्थक, अब इसके कुछ कॉमन मिस्टेक्स बताओ। इसकी मिस्टेक्स ये होती है, एक तो इनहेलर को यूज करने से पहले शेक ना करना, या बहुत जल्दी सांस ले लेना, सांस को बहुत लंबे समय तक नहीं रोकना, या फिर बाद में जब बच्चों को दे रहे हो तब स्पेसर नहीं यूज लेना। अब तुम मुझे इसके कुछ एडवांटेजेस बता सकती हो? इसके एडवांटेजेस ये है, पहली बात तो ये पोर्टेबल है, हम इसे कहीं भी कैरी कर सकते हैं। दूसरी बात, इसका क्विक एंड एफिशिएंट ड्रग डिलीवरी है और इसे हम अक्यूट या क्रॉनिक रेस्पिरेटरी कंडीशंस में यूज कर सकते हैं और इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत मिनिमल होते हैं। पर इसके कुछ एक अगर साइड इफेक्ट्स देखें तो एक तो इसको यूज करने के लिए प्रॉपर टेक्निक चाहिए होती है, कुछ पेशेंट्स में कोऑर्डिनेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, और इसमें एक पोटेंशियल होता है ओवरडोजिंग का। अगर बाय चांस मैंने इसको 2 बार ना पुश कर दिया तो इससे ओवरडोजिंग हो सकती है। पर उसके अलावा इसमें डिसएडवांटेजेस बहुत कम होते हैं। थैंक यू एवरीवन। वी लाइक टू कॉल फरजान फॉर ड्राई पाउडर इनहेलर्स।